हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम अक्षय तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी मेंबर एट एजुकेशन वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया था, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोंस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। हमने क्या लिया, टू सिमिलर स्प्रिंग ले ली। ठीक है, बैलेंस के लिए ए एंड बी जॉइन कर दिया उनको बाय ए शो इन फिगर। द अदर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी इज अटैच्ड अ रिजिडली फिक्स्ड इन अ रिजिड बॉल। इस बॉल से हमने क्या कर दिया, उनको अटैच कर दिया। अब क्या कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है। ठीक है, पुल करेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगी, रीडिंग आएगी। अब इधर भी लगी फोर्स लगेगा, उतना जितना इधर लगेगा हमारा। हम इस पर 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहे थे, इधर कितना लगेगा, 20 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा स्प्रिंग पर। तो ये भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस is pulled out to the left. Both the balance show the reading 20 Newton for the force. The pull balance A exerts a force of 20 Newton on the balance B. It acts as B pull the balance A in opposite direction with a force of 20 Newton. This force is known as reaction. ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें इसमें, if may be noted that action and reaction occur simultaneously. Action and reaction never act on same body. Had this been the case, there would have been no motion. Since action and reaction occur in pair and act on two different bodies, it is impossible to have single isolated force. Okay. Explanation. It may be noted that action and reaction occur simultaneously. Action and reaction never act on same body or act नहीं होते. Had this been the case, there would have been no motion. Since action and reaction occur in pair and act on two different bodies, तो होते हैं ये action reaction same body पर नहीं होते. Example: swimming of a man. The man swims because he pushes water behind. Water pushes man forward. आप जब स्विमिंग करते हो तो हम क्या करते हैं, हम पीछे उस पर फोर्स लगाते, कभी हम क्या करते हैं, एक्शन करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीछे जब कुछ करो तो हम क्या करते हैं, पीछे जब हम एक्शन करते हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, वो हमारा रिएक्शन हो सकता है। जब आप चलते हो तो चलते समय क्या होता है, ठीक है, हम एक्शन करते हैं, फिर एक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है। मैन पुश द अर्थ behind from right foot, earth pushes the man forward, then the man walk. तभी मैन क्या करता है, चल पाता है। ठीक है, अर्थ को पीछे करेंगे ना। फ्लाइट ऑफ अ जेट और रॉकेट. The bird gases are executed from behind with high speed, giving the gases backward momentum. The existed gases impart the jet or rocket a forward momentum. Then jet और रॉकेट मूव. जब क्या होता है, पीछे की डायरेक्शन में जब क्या होता है मोमेंटम, तो क्या होता है रिएक्शन, तो क्या होता है रॉकेट आगे मूव करता है। ठीक है, गन और बुलेट. अ लोडेड गन हैज अ बुलेट इनसाइड इट. ठीक है, व्हेन द गन ट्रिगर इज प्रेस्ड, the powder inside catalyst explodes. A force of action acts on the bullet and make the light bullets come out of the barrel. With the high velocity, the heavy gun moves behind with velocity with a small velocity due to force of reaction. This is also an example of law of conservation of linear momentum. ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आप जब ट्रिगर को दबाते हैं तो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या एक वेलोसिटी होती है, उससे हम रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। इसके बारे में और आगे डिटेल पढ़ेंगे। मेन एंड बोर्ड. आप जब बोर्ड चलाते हो तो लीवर के अंदर तो क्या करते हैं, पीछे जब फोर्स लगाते हो तो बोर्ड क्या जाती है, आगे की तरफ जाती है. Hose pipe. A water pushes out of the hose pipe with a large velocity due to force of action of the compressor from behind. The rushing out jet of water pushes the hose pipe
behind due to force of reaction. Then pipe is to be held tightly. No action is possible without action. Action के बिना reaction नहीं हो सकता. Nail cannot be fixed on a subtended wooden board. A paper cannot be cut by a scissor of single blade. A hanging piece of paper cannot be cut by a blade. Writing on a hanging page is impossible. Eating on a piece of sponge does not produce reaction. You do not enjoy eating. Action and reaction are not balanced. Action and reaction through equal and opposite are not balanced because they act on two different bodies. If case when they act on two different bodies forming a single system, they become balanced. Interaction between bodies and of a distance. समझते इसको कि जैसे मान लीजिए आयरन है तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो आपकी तरफ जाएगा. वाटर को जब आप एक्ट करोगे यहाँ पर तो रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, यहाँ से क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर रिएक्शन करेगा. इस तरह से एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन नॉट एंड एक्शन रिएक्शन पेयर. आप क्या हम क्या करते हैं, टेबल लेते हैं, टेबल में क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो टेबल के नीचे का वेट लग रहा है, ये क्या होगा mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इक्वल टू क्या होगा w. ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है. तभी तो ये ब्लॉक जो है वो टेबल पर है, वरना ये टेबल पर नहीं रहेगा, ठीक है. इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे. By Newton law, Newton second law, the rate of changing momentum is equal to the right force. Changing momentum upon time equal to force. Changing momentum equal to F into T. F equal to 0. Changing momentum F equal to 0. If the force applied on the body is 0, then momentum will be conserved. This law is also applicable on the system. If in system the momentum of the object present in the system are P1, P2, P3 and external force on the system is 0, then P1 plus P2 plus P3 equal to constant. Note, if only internal forces are acting on the system, then its linear momentum will be conserved. Linear momentum क्या रहेगा, कंजर्व हो जाएगा. टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. P1 plus P2 plus P3 equal to दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, तो लीनियर पढ़ रहे हैं, एक एंगुलर भी होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे. इसका फॉर्मूला होता है mvr. क्या होता है बच्चों, mvr. और मोमेंटम में आते हैं क्या होता है, mv. चलो आप समझते हैं चीज को. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय थर्ड लॉ से हम बात करेंगे. दो बोर्ड है m1 m2 पास है, u1 की स्पीड ज्यादा है, उससे बाद क्या होगी, इनमें टक्कर हो जाएगी. f1 टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और दोनों क्या होगी, आपका कोलिजन अलग अलग डिस्टेंस से क्या करेंगे, मूव करेंगे. u1 v1 से करेगा, u2 v2 से करेगा. f1 चेंजिंग मोमेंटम ऑफ टाइम और फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 v1 होती है, ठीक है. चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी b के लिए m2 v2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 v2. b के लिए m2 v2 माइनस m2 v2 u2 अपॉन टी. f1 इक्वल टू न्यूटन थर्ड हो गया, f1 इक्वल टू माइनस f2 वैल्यू पुट करेंगे, हमारे क्या जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इलस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गन है, गन का मास माना कितना है, गुड का मास स्मॉल है, स्पीड क्या है, पीछे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी. तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 होगा, फाइनल मोमेंटम रहेगा m1 v1 इक्वल टू m2 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0. माना v2 क्या है, हमने इक्वल वेलोसिटी मान ली, इसको हमने v1 मान लिया, तो v2 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस m1 v1 अपॉन m2 हो जाएगा. ये v2 क्या है, हमारी इक्वल वेलोसिटी, ठीक है. फ्लाइट ऑफ जेट रॉकेट, ठीक है, ये भी हम जैसे हम बात करें कि जब कंजप्शन होता है, गैस निकलती है, ठीक है, तो तभी रॉकेट क्या करता है, आगे मूव करता है, ठीक है. इसको हम पढ़ सकते हैं जेट प्लेन
and rockets provided with chemical fuel. Combustion of these fuel produce a high velocity blast of four gases. These gases move outward and escape velocity nozzle with very high velocity and large momentum. ठीक है? And vertically downward. The escaping gases impart their momentum of the jet plane and the rocket. They move forward or upward with a high velocity. In general, all cases involving action and reaction are examples of low conservation of momentum. Action and reaction being equal and acting simultaneously for some duration have equal and opposite impulses. They produce equal and opposite change of momentum in the pair of bodies involved. It keeps the total momentum of the two bodies system constant. ठीक है, मतलब कि जो टोटल मोमेंटम होगा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है. ये कंजर्वेशन मोमेंटम, एनर्जी तो कंजर्व ही होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है, कंजर्व. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल और उसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस करते हैं. तो बच्चों डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बहुत आसान न्यूमेरिकल है. मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई है, उसमें जैसे व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन रिकॉल्स टू क्या होगा, कंजर्व मास होगा, मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा. क्या हमने सभी पढ़ा किसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. तो हमारा आंसर होगा बी. ओके बच्चों, चलते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है बच्चों, a bullet is motion hits and get embedded in a solid resting on a frictionless table. What is conserved? क्या कंजर्व होगा बच्चों जब कोई एम्बेडेड होगा हीटिंग सॉलिड पर और बाद में जाकर क्या होगा, वो रेस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, मोमेंटम. क्या होगा, ओनली मोमेंटम होगा. ठीक है, अगला सवाल बच्चों देखिए आपके सामने है. क्वेश्चन है, a bullet of mass 0.01, इसको मान लेते हैं m1, is fired from a gun. गन का वेट है, गन का मास है 5 kg, इसको मान लेते हैं m2. if the initial speed of the bullet to 50 मीटर पर सेकंड, बुलेट इसको v1 मान लेते हैं. कैलकुलेट द रिकॉइल, इसको v2 मान लेते हैं. हम जानते हैं क्या होता है, m1 v1 इक्वल टू प्लस m2 v2 इक्वल टू 0. तो हमें v2 निकालना है, v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन क्या आ जाएगा v2. तो m1 कितना हमारा, v2 कितना, v1 कितना 2 क्या आएगा, v2 हमें निकालना है, या नीचे क्या आएगा हमारा m2 कितना 5 माइनस m कितना गया 50. v2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस 0.01 इंटू 50 गया कितना 100 माइनस 0.50 क्या हो जाएगा, हाँ मीटर पर सेकंड. आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलते हैं बच्चों आगे अगले सवाल पर. ठीक है, सारे सवाल जो भी है वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आपकी पढ़ाई थ्योरी से बाहर का होगा. एग्जाम में हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा जो आपको सोल्व करना है आराम से. तो अगला सवाल सोल्व करते हैं आराम से. का सेंस मतलब ये कि हमें जल्दी भी करना है, पूरा को सोल्व करना है. ठीक है, व्हेन अ रनिंग बाइक accelerates suddenly, the pillion rider has a tendency to fall backward. This example, पीछे की तरफ बैकवर्ड हुआ, फोर्स अधिक लगा, कौन सा लो, न्यूटन का थर्ड. Suddenly the pillion drive has a tendency to fall back. इसको हम इनर्शिया ही बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया. तो क्यों ना इसके लिए हम याद करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इनर्शिया लो, कौन सा, रेस्ट इनर्शिया. चलते हैं आगे. फोर्स एक्ट्स अ स्टेशनरी body for the time t. The distance covered by the body s will
will be proportional to फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है स्टेशनरी बॉडी पर, जैसे मान लीजिए स्मॉल मास की, ठीक है। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? अगर हम बात करें फोर्स में एम ए होता है, बिल्कुल होता है, तो डिस्टेंस कवर एस इक्वल टू यू टी प्लस आर एट स्क्वायर, ठीक है। एस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसके होगा 1/t के होगा, ठीक है। चलते आगे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, द इम्पैक्ट विच अ बॉडी कैन प्रोड्यूस ड्यू टू कंबाइंड एफर्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कोड, मोमेंटम पढ़ा T इक्वल टू mv, यस और नो। चलते आगे, द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पहले फॉर्मूला मोमेंटम का देखो, T इक्वल टू mv kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या करें बताओ, ऊपर भी हम ऐसा करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन, किलो ऊपर एस से मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड कर दो, ये तो बन गया न्यूटन, ये बन गया टाइम सेकंड, ऑप्शन लगा दो बी, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी of a body continues its state of rest or uniform motion even on the application of external force is called, देखिए, the tendency of the body continues state is uniform motion even application external force किसके टाइप में होता है, zero change in momentum के, ठीक है। The tendency of a body continues in uniform motion even application force momentum। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 9, the tendency of a body continues in state of rest uniform motion even application external force, external the statement represent, अगर इस पर तो रेस्ट पर रहेगी, मूव करती रहेगी, कौन सा लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलते आगे, the magnetic of inertia of a body determined, इससे होता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, the magnetic of mass of body is determined by the mass, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है वाला, a body P is mass 2 and velocity 5v, another Q is mass 8, velocity 125, the ratio of momentum P1 निकालो, P1 कितना होगा 2m into 5v, यानी कि 10mv, P2 कितना होगा 0.4 20 हो गया, 0.2 10, तो P1 और P2 इक्वल टू कैंसिल किया गया 1/1, यानी कि 1:1, ठीक है बच्चों। चलते हैं, a vehicle has a mass of 1000 kg, if the vehicle is to be stopped a negative acceleration 1.7, force of friction between the vehicle and road, तो देखो मेरे ध्यान से, m ये दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, a vehicle has a mass of 1000 kg, a vehicle to be stopped negative speed, force of friction, यार देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू से भी कर सकते हैं, आपको पता है, तो ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फ्रिक्शन निकाल ले तो F इक्वल टू m नेगेटिव इसलिए माइनस फ्रिक्शन इसी कितना आ जाएगा 1.7 17 0 से 0 हो गया, 17 into 5 कितना हो गया 85, ठीक है बच्चे 8, ठीक है 17 और 8 कितने होते हैं 85, 85 तो 17 और 8 25, 177
85, 5, 8, 17, 3, 20, 85 और ये 0, ठीक है, 2550 मैक्स। क्या आंसर आएगा इसका? नन ऑफ दिस। A man running posted acceleration 3.5 develops a force of 280-90. The mass of man acceleration दे रखा है आपके इतना, ठीक है, तो इसका हमें निकालना है कि पर्सन का मास क्या होगा, ठीक है, मास क्या होगा आपको पता है, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, यस mg होता है। अगर इससे बात करें भाई, अगर हम इसमें W इक्वल टू mg लगाए, W कितना 280, m कितना, m तो निकालना है हमें, एसएसजी कितना देखा है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 0, आप 7 से गए 5 का, ये गया 400, ये गया 80, ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 8, ठीक है बच्चों, चलते आगे। बेटा क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। A mass of an aeroplane 2.5 T, its engine developed a force 8750 force taking off. The acceleration of that aeroplane at the time takeoff time पर इसका acceleration क्या होगा, इसका एरोप्लेन का। अब ये फोर्स कितना लगा हमें, सॉरी 8 से, ये हमारा फोर्स है, ठीक है, और जो हमारा फोर्स ये है मास कितना रहता है, ठीक है, ये मास को पता है, F इक्वल टू क्या होता है, m, यस, ठीक है, और आपको पता ही है 8750, ये हमारा क्या है, फोर्स है, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, 2.5 हमारा मास है। अब टेक ऑफ टाइम में लेना है, तो टेक ऑफ टाइम जब आप इसको सोल्व करोगे, ए निकालना है आपको, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, मगर हमारा ए नहीं है ना हमारे पास टी है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके हम इसको डिवाइड करते हैं, 2.5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हॉर्स वाइल constant velocity 15 मीटर पर सेकंड, डेवलप मोमेंटम 3 मीटर सेकंड, ठीक है, द मास ऑफ फोर्स का मास क्या होगा, मतलब देखिए आप इसके अंदर जो न्यूटन सेकंड है, तो आपको पता ही है क्या होगा, इंपल्स है, ठीक है, तो जो इंपल्स होता है वो क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट पता ही है आपको, ft, ठीक है, तो हम ft अपॉन v, यानी इंपल्स अपॉन v कितना 300 है, ठीक है, 300 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20, तो 20 और वेट कितना हो जाएगा इसका 20 into 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 200 kg, कितना आ जाएगा 200 kg। एक तरीका और इसको करने का, इसका वो बताता हूं आपको, a horse while running at constant velocity 15 मीटर पर सेकंड से डेवलप कर रहा है मोमेंटम 300, ठीक है, द मास ऑफ द हॉर्स, तो अगर हम चाहे, ये तरीका तो बेस्ट, ठीक है ना, चलते हैं अगला सवाल। A boy of mass 30 kg while running constant velocity of momentum 180, ठीक है, the constant velocity of a boy is, boy की वेलोसिटी क्या रहेगी, वो आसान क्वेश्चन, ठीक है, आपको बता अभी जिस कर रहे हैं v इक्वल कितना जाएगा, कितना गया 6 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी, ये करेंगे, ये नहीं, हमने 7 निकल लिया 18। इलेक्ट्रिक मास 9 into 10 की पावर -31 kg is moving straight like path, velocity 6 into 10 की पावर
10 मीटर पर सेकेंड, वो मीटर निकालना है इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हो गया, क्या जाएगा 31 24, ठीक है। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 का डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -23, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर। अब बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, 10 kg, बुलेट टेक a move through a barrel a level with a velocity 3 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो पता है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर अंदर जा रहा है तो रिडक्शन u स्क्वायर प्लस 2s कर देते हैं तो इसको, ठीक है। लेकिन हमें इसने यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या नहीं दे रखा, हमें नहीं दे रखा इसने, अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, F इक्वल टू m p माइनस u अपॉन t, फाइनल वैल्यू 0 जाएगी इसकी, ठीक है। मास कितना है 0.10, ठीक है, इसका मास है और वेलोसिटी क्या है इसकी 300, ये कितना है इसका टाइम है हमारे पास 0.03, F इक्वल टू कितना जाएगा 0.10 माइनस 300, 10 की पावर 2 जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 अपॉन 100, 10 की पावर 3 जाएगा, 0 से बढ़ गया, हाँ सही, 10 की पावर 3 न्यूटन, ये तो हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। अब मैं इससे निकालना है इक्वल टू एम इक्वल टू एफ अपॉन एम, काम बन गया 10 की पावर 3 अपॉन 0.10, 10 की पावर 2, एक 0 गया, कितना है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 की पावर 4 जो कौन सा आंसर है, ये आ गया हमारा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बच्चों, लास्ट सवाल हमारा अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। ट्रक स्टेयर ऑफ रेस्ट एंड रोल डाउन हिल constant acceleration if it travel 400 meter in 20 seconds, if the mass of truck 7 metric ton, ठीक है, the acting moment। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रक है, रेस्ट पर है, डाउन पर है, ठीक है, it travel 400 meter in 20 सेकंड, 20 सेकंड में है, तो पता है F इक्वल टू m होता है, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, S इक्वल टू u 0 हो जाएगा, ठीक है, 400 A इंटू A 400, ठीक है, 200 हो गया, ठीक है। A इक्वल टू कितना जाएगा, सोल्व करेगा, A इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आ गया, हो गया ना। हमें मास देगा 7 मीट्रिक, कितना जाएगा F इक्वल टू m 14 मीट्रिक, मतलब कि 14,000, आंसर क्या आ गया हमारा 14,000 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैप्टर का लाभ उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू।